वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज बातों बातों में। आज हम मिलने वाले हैं मैराथन रनर से, एक गेस्ट नहीं, दो से, और ये अभी क्रैको में रहते हैं। सो स्टे ट्यून। वेलकम कुणाल, वेलकम सुमन। थैंक यू। प्लीज़ अपने बारे में बताइए कुणाल फर्स्ट। मैं क्रैको में 2020 में आया, जब कोविड पीक पे था। जब जस्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई थी तब मैं इंडिया से क्रैको आया था। फर्स्ट टाइम मैं इंडिया के बाहर किसी कंट्री में जा रहा था, सो इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस एंड कोविड मेड इट मोर एक्साइटिंग। यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा कल्चरल शॉक था। जो मैं मुंबई में भीड़ देखता था, यहाँ पे लोग नहीं दिखते थे। सो क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग टू क्रैको। ओके, आपके बारे में सुमन? Yeah, first of all, thank you for inviting me here. This is my first podcast, so a bit excited. मैं क्रैको में आया हूँ around 2022, and it was almost 2.5 years I've been in Krakow. It was not the first time I came to a new country. I was in Portugal before, and though I know about the culture in European society, but culture-wise, I like the places. And then I joined a company as a software developer. I started my career here, and I brought my families also. So my daughter is studying in school here. So yeah, that is how it's been started, and still now it's going on. Yeah. Okay. Let's come to on a marathon part now. So मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब इंडिया में थे, आप पहले भी पार्टिसिपेट करते थे मैराथन पे, स्टार्टिंग विद सुमन? Yeah, sure. So first of all, let me clarify you that marathon was not my cup of tea. Okay, when I saw people are running, I was not so excited. मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, एक क्या दौड़ते हैं ये लोग। Then एक टाइम था 2015, okay, when मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो all of a sudden I fell down on the floor. I got unconscious. So my wife took me to a nearby clinic. So डॉक्टर ने देखा मुझे, कुछ टेस्ट दिया, तो टेस्ट रिपोर्ट आया 2 दिन के बाद, and I was shocked. At the age of 28, 29, I had high blood pressure, sugar, cholesterol, means क्या क्या नहीं था। वो सब चीज, वो जो चीज जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में होंगे, I almost got everything. आप कितने साल के थे तब? Around 28, 29. Okay. So a bit early. Then मैंने immediately डॉक्टर को दिखाया, चेकअप किया, तो डॉक्टर ने बोला कि immediately start meditation. तो दवाई स्टार्ट किया मैंने, बट आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि इतने को कम उम्र में इतना कुछ आ जाना शरीर के अंदर इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर द लॉन्गर रन। तो मैंने उसको पूछा कैसे दवाई से छुटकारा पा सकता हूँ। सो एंड बाय द वे दैट टाइम माय वेट वाज 97, yes, 97 kilo. You can check my photo in Facebook. It is still there. I kept it. We'll post it there, so don't worry. So then he told, you start the meditation now, and later what you can do is you start reducing the weight. That is the main factor. ठीक है, करूँगा, क्या जाता है। तो मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा घर के सामने एक लेक था, तो लेक में मैं और मेरी बीबी जाती थी। My wife Kia was very supportive to me. So बोलते हैं चलो रन करते, दोनों करते। She was lean and I was like this. I was okay. So then I started around 100 meters. I feel lot of pains in legs. I had a food craving at night, but मुझे food भी control करना था, running भी करना था। तो first 6 months I was almost crying every day in the night in the bed. So what happening to me? Because I am a very food lover. You know, as a Bengali guy, if you are not eating rasgulla, your life is worst. So I am that kind of person. But yeah, eventually I controlled. Then I started my journey with 100 meter, 200 meter, 500 meter. So since 2017, I ran my first marathon, 42.197 kilometer. I completed around 3 hours 43 minutes.
and it was my best performance at that time, and I was very happy. So that is how it is started, and still this journey going on, and this is how my story begins with marathon. Yeah. Okay. कुणाल, आपकी बैकग्राउंड? मेरी जर्नी एकदम बहुत ही अलग तरह से स्टार्ट हुई थी। मैंने 2015 में एक कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे जैसे न्यू टीम मेंबर के साथ हम लंच के लिए जाते थे वैसे गए थे। तो जो दो टीम मेंबर थे वो एक मैराथन, मुंबई मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनका ट्रेनिंग के बारे में डिस्कशन चालू था। सो मैं सुन के लगा कि चलो हम भी कर सकते हैं, मतलब उनको देख के लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि अरे कैसे रजिस्टर करना है। सो दे टोल्ड मी कि यू नीड टू गेट अ टाइमिंग सर्टिफिकेट। सो टाइमिंग सर्टिफिकेट इज व्हेन यू रन एनी running event, you get a certificate that you completed XYZ distance in this much But time. is it quite hard to get it No, in no. India? Any registered marathons, well-recognized marathon, give you that kind of certificate. Okay. So even local marathons are offering that certificate. Mhm. But I had no experience of running, so I didn't have that certificate. Mhm. But उसमें और एक option था join करने का, because my company was a sponsor of one of Mumbai Marathon. So we had a corporate entries. Okay. So corporate entries को वो certificate नहीं लगता था। Okay. So I went to my HR. I told him I want to participate in this. I need this entry. So he told me you are too late. We already finished our entry. So come next year. Okay. तो उस साल मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने डिसाइड किया इस बार टाइमिंग सर्टिफिकेट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे। Okay. फिर मैंने एक 10 किलोमीटर का इवेंट था, लोकली हो रहा था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और फिर 2017 में मैं वापस गया रजिस्टर करने के लिए। मैंने नॉर्मल रूट से अप्लाई किया एंड दे सेड वी गॉट सो मेनी एंट्रीज दिस टाइम एंड योर टाइमिंग इज नॉट इन द टॉप, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। सो फॉर 2 years दे रिजेक्टेड मी एंट्री एट मुंबई मैराथन। फिर मैंने डिसाइड किया अब ना दौड़ेंगे मुंबई मैराथन, अपने बस की बात नहीं, अपने औकात के बाहर है। समटाइम आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना जब आपको चांस नहीं मिलता। Yeah. हाँ, तो 2 बार कंसिस्टेंटली ये हुआ, फिर मैंने प्लान स्क्रैप कर दिया। बट मैं लोकली 10 किलोमीटर के इवेंट पार्टिसिपेट करता था, बट साल में एक ही बार। सो डिसम्बर एवरी ईयर 10 किलोमीटर जाके भागना, इट्स लाइक अ रिचुअल फॉर एवरी ईयर। तो ये मैंने कंसिस्टेंटली 3 साल किया। 4th ईयर मैंने हाफ किया 21 का। बस मेरा इतना ही कनेक्शन था रनिंग से। इवेंट के 3 महीने पहले प्रैक्टिस करो और जाओ, और प्रैक्टिस भी ऐसे ही भागना है। मतलब आई नो नाउ मच better way how to train for this kind of events, but at this point of time I didn't have the friend circle or community who can guide me how to train for these kind of events. So I trained in a totally wrong way, I would say now. So You had some injuries? No, I never had any injuries. But I would say I would have enjoyed had I trained in a proper way. So it मतलब आप 10 किलोमीटर के इवेंट करने के बाद नेक्स्ट डे स्टेयर चढ़ने में अगर दिक्कत होती है, सो आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड साइन, यू आर नॉट अ ट्रेनिंग इन अ प्रॉपर वे। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके वो 4 साल के बाद जब मैं क्रैको में आया, तब यहाँ आने के बाद मैंने फर्स्ट काम वो किया कि लॉटरी में एप्लीकेशन डाला बर्लिन मैराथन के। सो जब बर्लिन मैराथन में अप्लाई किया, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सो इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग दैट local marathon in Mumbai rejected me, but now I got a chance to run a fastest marathon on the planet. बर्लिन मैराथन में आज तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं मैराथन टाइमिंग के लिए, whether it is men or women, it is the fastest marathon. जब मुझे ये चांस मिला कि I got a entry, तब मैंने डिसाइड किया I am going to complete this distance no matter what happens. I'm not going to get a do not finish kind of mark. I want to complete this run. So उसके बाद मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट किया। मैंने कुछ कोचिंग ली, कुछ गाइडेंस लिया, और उसके बाद मैंने एकदम प्रॉपरली ट्रेनिंग स्टार्ट किया। सो बर्लिन इन 22 वाज माय फर्स्ट मैराथन। बर्लिन मैराथन स्पेशल इसके लिए था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मैराथन था, एंड आई केम अप फ्रॉम हिस्ट्री कि मुंबई में मुझे 2 बार रिजेक्ट किया था। मुंबई में आई थिंक ज्यादा लोग होंगे मे बी इसकी वजह से। No, because Mumbai has 7,000 participants and Berlin has 50,000 participants. Okay, so maybe पैसा जो ज्यादा दे उसको। No, it's not like that, because in Berlin everyone runs, and like
even there are 50,000 entries, there are 5 lakh people applying for Berlin Marathon. Yeah, it's a quite Okay. international. Yeah. It's like world's top marathon. There are 6 world major marathon, and Mhm. Berlin comes in that marathon. So if you just check the prize money of the Berlin Marathon, it is 100 times more than what you get in Mumbai. Okay. Yeah, so Berlin is like top marathon, Mhm. and that is why I wanted to complete, because I wanted to just have a kind sense of achievement that even you get rejected locally, you Mhm. can still fight at the top level Mhm. and finish those events. So that is why I trained regularly, consistently, and I finished that marathon. Plus, the important thing is that in the same marathon, world record was created. So Okay. it is very difficult for person like us, like ordinary people, to participate in the event where world records get created. So Yeah. that is why it was a special. Mhm. And after that event, I was in frame of mind, and I didn't train regularly. So for next 4 or 5 months, I didn't train, and then I started training again. So after that, I wanted to run an event which is like a world class or kind of Berlin Marathon. I didn't wanted to participate any local event. So I was searching for event which is of that standard. So I came to know about Jungfrau Marathon. So Which one? Jungfrau. So Okay. it's in Switzerland. Uh-huh. It starts at Interlaken and it finishes at the top of the Europe. So Okay. it's like you run for elevation of 2800 meters, and it finishes right below the top of the Europe. Okay. So I did that. After that event, I started searching again some exciting event. Okay. Then I came to know about Athens Marathon. That Uh-huh. is also special because the marathon event started from Athens. Because when first person finished that 42.2 kilometer distance, Uh-huh. the marathon was originated. Okay. And Athens Marathon happens on the same track where the first person ran that 42 kilometers. Okay. Even for like more than 300 years ago it started, but they are still doing So that. you also participate in this one? Yeah, I So participate. how many marathon you totally participate in? So I participate total 4 marathons. Uh-huh. The last one is in Krakow because I stayed here for 4 years. I started my journey here, so that is why I wanted to have the medal of Krakow Marathon. Oh yes. It's a big achievement. Yeah, so that is why I finished my 4th in Krakow, Uh-huh. and now I'm not running marathons. I am participating ultra trail run events. Mhm. So ultra trail run events are happening in the mountains. So Okay. it's not like the regular road you have. Mhm. These events happen in the mountain where you have to train for elevations. You have to train for the high, low, cold temperature at the altitude. Mhm. So recently I finished 80 kilometer run in Slovenia. So Okay. it's 80 kilometers plus 4,000 meters of elevation. Okay. Okay. What about you, Suman? आपने ये आपकी पहली मैराथन है कि जहाँ आपने ऑलरेडी काफी मैराथन में पार्टिसिपेट तो when मैंने जब इंडिया में था तो I participated in Mumbai. Mumbai was my first and very special one. Then आपको मिल गया वहाँ पे आई थिंक Yes. इन्होंने अप्लाई करा था इनको no, मुझे मिल गया था. So Okay. I didn't face much challenges. Okay. उसके बाद चेन्नई, then Goa, Delhi. So in India, those are the major marathons I participated. Then जब 2022 में मैं यहाँ पे आया तो 23 में मैंने क्रैको मैराथन के लिए अप्लाई किया था. Okay. So I ran the Krakow marathon in 23 and it was good. Even though मैंने एक साल उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि नया कंट्री है, कुछ फैमिली ऑब्लिगेशन भी रहते हैं तो Yeah. उसके कारण ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाता था. फिर विंटर में बाहर दौड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्नो के अंदर. या तो यहाँ पे कोल्ड भी correct, बहुत cold होता होती है. है. It's like तो if you get the sweat inside and automatically it will catches the fever. तो कोल्ड के टाइम में वो बहुत होता था तो इसलिए मुझे ज़्यादा के टाइम पे मैंने ट्रेडमिल में दौड़ना पसंद करता था. क्योंकि ट्रेडमिल में क्या होता था एटलीस्ट यू कैन स्टे इनसाइड एंड यू कैन रन फॉर अराउंड 20 kilometers ऑन द ट्रैक. so you're But- saying like if you run outside in winter you Yeah. can get sick? Yeah, sometimes because it depends on your sweating. If you're Okay. sweating much inside, then it is always better. You can change your clothes immediately. Otherwise, if it stays inside, you can get cold. Okay. Yeah, so वो उसका एक प्रॉब्लम होता है.
हर किसी को नहीं होता है, मगर आई फेस दिस प्रॉब्लम। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ कि ज़्यादा के टाइम में मैं अंदर ही रनिंग करता हूँ, और नहीं तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन देयर इज अ सन टू रन इट एंड कम बैक। तो क्रैको में किया था। बर्लिन में मैंने रजिस्टर तो किया था मगर हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो लॉटरी में मेरा नाम नहीं हुआ। सो वो मुझे नहीं मिला है, तो इस बार फिर से ट्राई करूँगा बर्लिन के लिए, देखता हूँ अगर होता है कि नहीं है। तो बस वही है। और एक मैराथन मेरा दिमाग में है जो अभी इसमें कोपेनहेगन में होता है, एक कोपेनहेगन फुल मैराथन, तो वहाँ पे भी ट्राई करूँगा। तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है रनिंग में, क्योंकि वहाँ पे मिल जाता है। मगर जो 6 मैराथन मेजर मैराथन में जो बोला है ना, तो दैट इज़ ट्रू, बिकॉज उसमें टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। लॉटरी में होता है वो, तो लॉटरी में अगर नाम आ जाता है फिर यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन। तो वही प्लान है। सो बैलेंसिंग माय फैमिली ऑब्लिगेशन एंड अलॉन्ग विद माय पैशन। सो लेट्स सी कैसे चलता है। तो आपको जब आपने पार्टिसिपेट करा मैराथन में, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली कि जहाँ आपने भी इनकी तरह अपनी तरफ से ही करा? नो, मेरा पर्सनल ट्रेनिंग बहुत काम आया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे इंजरी थी, मुझे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था ऑन माय लेफ्ट लेग। डॉक्टर ने कुछ मेडिटेशन बताया था, कुछ एक्सरसाइज बताया था, तो मैंने वो किया था। उसके बाद मुझे ठीक से उसका प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ। फिर मुझे और एक चीज़ है जो वाइटल है, वो है चूज योर राइट शू। Which? शू। Okay, या yes. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जब तुम दौड़ते हो, हम लोग क्या होता है उसमें ज़्यादा फोकस नहीं डालते। शू कुछ भी पहन लो, अच्छा से एक ब्रांड ले लो और पहन के दौड़ लो, मगर वो सही अप्रोच नहीं है। शू का क्या होता है, कुछ अलाइनमेंट होता है, हमारे लेग्स का कुछ अलाइनमेंट होता है ओवर प्रोनेशन, अंडर प्रोनेशन और न्यूट्रल। जो लोग न्यूट्रल होते हैं, क्या होता है उनका हिटिंग ग्राउंड होता है, क्या वो नॉर्मली हिट होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो जहाँ पे इम्पैक्ट एरिया होता है वो आपका सेंटर ऑफ योर फुट होता है। तो वो उसमें आप कोई भी शू पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मेरा है ओवर प्रोनेशन। ओवर प्रोनेशन क्या होता है कि अंदर वाला जो एरिया है, जो कर्व एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सोल अलग से चूज करना पड़ता है। तो ये आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बताएगा, राइट? यस, आपका कौन सा सोल है? यस। सो आपको उन्होंने बताएगा कि एक ट्रेडमिल देंगे उसको, उसके अंदर एक एक्सरे मशीन रहेगा। तो आप जब दौड़ेंगे उसके ऊपर, वो आपका रनिंग एनालिसिस करेगा और इम्पैक्ट एनालिसिस देखेंगे। उसके ऊपर आपको बोलेंगे कि आपका शू कौन सा लेना चाहिए आपको। तो वो मैंने जब बैंगलोर में था तब भी मैंने कर लिया था। तो मुझे पता है कि मुझे ओवर प्रोनेशन है, तो उसके हिसाब से मैं शू चूज करता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने वो ट्राई किया था, और वही मुझे सबसे बड़ा हेल्प किया कि और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं बैंगलोर में था तो आई वॉज पार्ट ऑफ द स्केचेस ग्रुप। सो स्केचेस ने मुझे स्पॉन्सर किया था दौड़ने के लिए। मुंबई में नहीं, मुंबई के देखने के बाद ही मुझे किया था। तो चेन्नई, गोवा, इस 2 जगह पे मुझे स्पॉन्सर किया था स्केचर। या तो स्केचर्स ने मुझे स्पॉन्सर किया था इन गोवा एंड चेन्नई मैराथन में, ऑल द एयरफेयर टिकट्स एंड द स्टे and the kits, everything. So I was very thankful to them for that particular gesture, definitely. So उन्होंने मुझे बताया था कि because I had a coach, so हम लोग हर संडे को रनिंग के लिए जाते थे। तो we had a group of 30-40 people, so वहाँ पे हम लोग दौड़ते थे। We had a proper stretch out session. After running we have a cool down session. तो सब कुछ करते थे। तो इसलिए जब मैंने क्रैको में आया उतना फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। ओनली थिंग इज दैट गुड न्यूट्रिशन, गुड स्लीप एंड भागो। क्या मतलब बाय गुड न्यूट्रिशन? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? गुड न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि अच्छा खाओ, मतलब ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करो, दैट इज़ गुड फॉर रनर्स। कभी कभार लोग बोलते हैं मीठा खाना छोड़ दो, बट आई एम नॉट टोटली एग्री विद देम। मीठा खाओ, बट यू शुड बर्न योर कैलोरीज। आप कोलकाता से हो, आपको रसगुल्ला चाहिए। एग्जैक्टली। सो मैं खाता भी हूँ और दौड़ता भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी एक ही है। अगर इसमें भी अगर नहीं खाऊंगा तो क्या बचा क्या रहेगा। ठीक है, हाँ ये तो बात सही है कि आपका हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा छोड़ दो, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल एथलीट तो है नहीं कि हम लोग जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आई नो माई लिमिटेशन। मैं दौड़ता हूँ, मैं उससे और भी अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ, बट दैट डजंट मीन्स दैट आई कैन गो रन एंड कंप्लीट इन 2 hours 15 minutes 30 minutes, बिकॉज दे आर इनटू द डिफरेंट लेवल्स।
Yeah, Yes. they train since Yeah, they see childhood. from their childhoods, and that is their everyday job. Yeah. Morning में they wake up and go for running. आता है, खाते हैं, सो जाते हैं और शाम को फिर से रनिंग करते हैं. But for us it will be difficult. We have a family obligation. We have to go for work. We have to deliver the code. Okay. और प्रोडक्शन बग भी आएगा, उसको सॉल्व भी करना है, फिर रनिंग में भी जाना है. So yes, so that is how we have to do. Yes, खाओ, सब कुछ खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करो, बिकॉज बाहर का जो खाना है उसमें ज़्यादा हम लोग को कैलोरीज का प्रॉब्लम होता है. घर का खाना कुछ भी बना के खाओ, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है. मीठा खाओ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, स्मोकिंग छोड़ना है, बिकॉज इफ़ यू स्मोकर then your lungs will be not be capable to do long running events because आपको breathing का प्रॉब्लम आएगा. तो वो एक चीज़ है जो आपको अवॉइड करना है. हाँ, मतलब किसी की वजह से मतलब कुछ भी करो वो आपकी अवॉइड एक्चुअली करना है. बात सही है कि ये जो पीपल जो स्मोक करते हैं Yeah. और ऑल्सो जो पहले से चाइल्डहुड से जो ट्रेन होते हैं उनका Yeah. नेक्स्ट लेवल होता है. Correct. क्योंकि मेरा ब्रदर एक्चुअली एथलीट है, तो वो प्रोफेशनल एथलीट कंपटीशन करता है. Yeah. और ही इज करंटली लाइक अ कोच इन Wow. ऑस्ट्रेलिया. सो आई नो लाइक जब वो छोटा था, जब मेरे साथ मे बी मैं भी 10 साल की होंगी, बट वो बहुत फास्ट था एट उस एज में भी. बट अगर मैं कंपेयर करूं अभी मुझे और उसको, मैं आई थिंक मे बी 5 मिनट भी नहीं दौड़ पाऊंगी उसके साथ. सो इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग Yeah, फॉर yeah, श्योर. that's true. कुणाल, आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने जो स्टार्ट करा मैराथन, आपने ट्रेनिंग प्रॉपरली एज यू सेड कि भी आपने अपनी तरफ से करा, बट अब जब यहाँ पे हो बर्लिन में, जहाँ आप यहाँ पे भी क्रैको में भी कर रहे हो और आपका और भी फ्यूचर प्लान है पार्टिसिपेशन का, तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो किसी से जहाँ खुद ही ट्रेन कर रहे हो अपने आप को? मैं बेसिकली मेंटरशिप लेता हूँ. मतलब मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में स्पेसिफिकली इम्प्रूव करना है, तो आई गो एंड चेक फॉर द मेंटरशिप प्लान्स, बिकॉज फॉर अस there are professional commitments and there are family commitments. So if someone tells you that you have to follow this kind of structured plan, following that plan is not very easy because we don't know what will happen in next 2 weeks, what will be our work commitments. Yeah. So it is very difficult. I initially took that kind of initial phase where I used to go for training plans, but I realized that following that training plans is very difficult for me. So I go for mentorship now. I take advice from people. What should be my weekly mileage? How many hours I should spend on the strength training? If my event is like after 9 months or 6 months, what should I do in the previous 3 months, previous 6 months? That kind of mentorship I take from some professional coaches. But it is they give me a building block. Yeah, this is you have to do, but what I have to do on a daily basis, that is what I decide on my own. It depends, because if someone tells me that tomorrow you have to do a 20-kilometer run, but previous day I am not getting good sleep, then I cannot do that run, and even if I do that run, it won't be effective. So that is why on day-to-day basis I took care of my own training plan, but I go to coaches for the advice how to reach to that particular goal. Okay. And in terms of nutrition, I avoid refined food or processed food. I don't like chips and all those stuffs. Luckily, I don't like it, but I try to ensure that I get fresh foods, and I try to avoid caffeine like coffee. So even if I want to have a coffee, I go for decaffeinated coffee, because in that coffee you don't get caffeine. So there are options available nowadays. It is possible that for every good thing there is alternative available, but you just need to go and search, because I know in the office I have to go with my colleagues for a coffee. Yeah, but and only one type of coffee is available. yeah, there. only one type of coffee is available. But if there is good kind of syrup is available, then you can take that syrup as well. So because in my office they have a coffee machine and they have a some syrup where it is like extract from fresh fruits. So I took those. So it is very difficult to have a social circle when you don't want to take a coffee, but there is always a way to get Avoid the it. things Yeah. get the things done.
So this is how I follow my trainings. So you just you control yourself not to do stuff that's Yeah. actually making you, or maybe in future it will impact. Yeah, Right. it will impact, because it all depends how you follow your training plans, or how you approach to your overall goal. It is not that you miss 1 week entire sessions and then you cannot go back to the same level of fitness. Then you have to spend another 2 weeks to get to back to that fitness level again. So it is very important to maintain consistency and have some plans, because it is always about the priorities. You can do certain things at certain point of time. Just imagine, I cannot run in winter here, but there is cycling, there is indoor cycling which I can do sitting in my home. So Yeah. we have to figure out the way to maintain our fitness. Just blaming weather, blaming the infrastructure, I ये mean, मैं करती हूँ, मेरी yeah. आदत है. yeah, so this is how I approach to my plan, because I don't participate in every marathon which is happening around me. I don't participate just because my friend is going for one event and I don't want to go along with him. I always follow that, yeah, this year I want to do these 2 events, but I train regularly. So I you don't. made a goal and you have to achieve that in Yeah, 1 but year. your goal should be dependent on the amount of time you can provide to that event. Suppose if someone has professional commitment and family commitment, they cannot run 42 kilometers, but at least you can train for 5-kilometer event. How or much maximum kilometer you run till now? 80 kilometer is my maximum. 80 or 18? 80, 80, my 80, God. 80 plus 4,000 meter It's a elevation. lot, impressive. Yeah. And आपकी सुमन? मेरा Maximum. मैक्सिमम है 50. अल्ट्रा मैराथन मैंने किया था जो इंडिया में, बस वही मेरा हाईएस्ट है. बट मैक्सिमम आई डी 42. यस 42. Yeah. Okay. 40 to 50 around. Yes. But it's still a lot. मेरे से 2 किलोमीटर नहीं चला जाएगा. No, I mean, even when I started, I struggled to finish my first 1 kilometer. So even people tell me that you are doing 80. I didn't do 80. I started with 1 kilometer only. Everyone Yeah. struggle at 1 kilometer. But what matters is that whether you go next day and train again or not. And for these kind of things, you need a patience. You are not going to see the results in 4 weeks of training. You have to Yeah. do it consistently for 6 months, 9 months. Then only you will see noticeable For results. example, अगर जैसे मैं ही हूँ, है ना, मैंने अभी चलना सीखना है, जहाँ मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आपको गाइड करना है मुझे? हाँ, सब so पहले तो आपकी हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वेदर एट अ स्कूल लेवल और एट अ कॉलेज लेवल, वेदर अगर यू नहीं पार्टिसिपेट. है कॉलेज लेवल पे, कुछ मे बी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करिए बट नॉट दैट मच. Yeah, so then you cannot directly start with 42 kilometers event, right? First you have to strengthen your muscles, strengthen your body, because when running is an impact sport, entire weight of the body will come to your one single joint or one single foot. When you run, entire body comes on one single leg. So you have to first strengthen your muscles to take that kind of load. If you are going directly to running, then your body won't be able to handle that kind of stress. So first, बट लोग तो ट्रेडमिल पे रन करते हैं. no, that is not the right way. I mean, whether you want to do that for like only one event, that is fine, but you always take a risk of injury, and if you get injured, then it will take longer time to get recover. Probably you won't enjoy, because you will find people at the finish line of 42 kilometer run, they are fully exhausted. After finishing the run, they cannot even walk. Yeah. So some people want to give out everything, but some people want to enjoy that event, enjoy that finish line. Yeah. So it matters how to approach to that event, because you can train, you can directly go to running and do it. It is possible. I am not saying that it is not possible, but it may not be enjoyable. After that, finishing that marathon, you should have enough fun that you will enjoy, register for next marathon. Because for us, Because you will go one day and then later next day you will feel like I'm tired, I don't want to move. Yeah. Yeah, and for starting running, your base is very important. If your muscles are not ready to take that kind of training load, then over the period of time you will face injuries, and injury is very difficult to recover, because then you need to go to doctor, and doctor will advise don't participate in that event. Yeah. Just to give you advice, I mean, the thing which happened with me, for my first marathon, I did all the medical tests. I did one 24 hours ECG,
So doctor put all the sensors on my body for 24 hours, and then they checked whether my body would be able, my heart would be able to take that kind of load. And after doing all these tests, they told me that for next 3 years you don't need to do this kind of tests. Your body is sufficient to take this kind of load. So if someone never trained, then they should first make an assessment whether they should be able to train that kind of event or not. So it is not necessary that you have to prepare everything from the start. Yeah. Like medical test and then maybe start training. Because someone has a history in their family that they had a cardiac arrest, then they should first get it tested whether their body can take that kind of load or not. And just because someone is doing it and they did it, that is why we can do it. That is not a good way of training for this kind of events. But I would say if you don't have any history, just focus on your strength training and then go for a running, because your body should be able to take that kind of training load. सुमन, आपके सेम क्वेश्चन कि अगर किसी ने स्टार्ट करनी है रनिंग, क्योंकि आपने भी जर्नी स्टार्ट करी है जीरो से, सो हमें बताओ कैसे करना है. सो मैं क्या बोलता हूँ कि तुम अगर रनिंग करना है, इफ यू आर ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, दैट इज अ बिग थिंग. ओके, सो नाउ यू कैन गो टू एनी पार्क, स्टार्ट वॉकिंग, start fast walking, brisk walking, and see how your body is responding. Don't run at the initial few days. Start walking, walk for longer distance. Let's see how your body reacting. If you feel okay, then next day you start pushing yourself. Check your watch. At least 7, 8, 9 km/h also is fine. You can just run a little bit, 1 kilometer. Even 1 kilometer is not possible, 500 meters, do it. Let's see how your body is responding. If you feel pain on your body or your legs, give some time, do a proper massage and then go again. And continue this part, because what I believe, in this world, everybody can run. There is no such problem. Yes. आपने यहाँ पे बोला है रेस्ट करनी चाहिए, राइट? जैसे हमारे पंजाब में सिचुएशन ऐसे बोलते हैं लोग कि अगर आप जिम जाते हो तो हम बोलते हैं खल्लियां पड़ जाती हैं, लाइक तो पंजाबी में खल्लियां बोलते हैं, आई डोंट नो, सोलनेस होता है ना. तो अगर वो आपको होती है, अगर आप दोबारा जिम जाओगे तो वो सही हो जाती है. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेस्ट नहीं लेते. अच्छा. हम लोग मोर फोर्स करते हैं अपनी बॉडी पे, तो कि भी उसको खत्म करने के लिए. नहीं, इज इट अ राइट वे और रॉन्ग? ये राइट वे कुछ उसमें ठीक है. जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, एक दिन अचानक से तुम आपको लगा कि फुटबॉल खेलना है, चलो खेलते हैं, खेल लिया, नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, आपने रेस्ट नहीं लिया, नेक्स्ट डे फिर से गए और पेन कम नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है जो उस पेन को नहीं सह पा रहा है. तो उस टाइम को आपको रेस्ट लेना चाहिए. और ऐसा क्या होता है, अगर ये इसलिए मैंने आपको बोला कि जब तो आप रनिंग में जाओगे या वॉकिंग में जाओगे, अब देखो आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. अगर बॉडी देख रहा है कि धीरे धीरे आपका पेन कम हो रहा है, तो मतलब ये बॉडी बिकॉज बॉडी क्या होता है, वो स्टार्टेड एडजस्टिंग विद द सिचुएशन. करेक्ट. क्योंकि हम लोग जब इंडिया में थे, जस्ट थिंक अबाउट ए सिचुएशन, हम लोग जब इंडिया में थे 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग झेल सकते थे. मगर अभी आप इंडिया जाओगे, इवन 30 क्या 20-30 भी लगता है बहुत ज्यादा सनी है, क्योंकि हम लोग एडजस्ट यहाँ पे हो गए, बॉडी ऐसे रिएक्ट करना स्टार्ट किया है. तो रनिंग भी ऐसा ही है, जितना आप टाइम दोगे उसको, जितना आप उसको इसमें ट्रेडमिल में नहीं, पार्क में, किसी भी रोड में जितना टाइम दोगे, बॉडी उसके हिसाब से आपका रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा. जैसे मेरा किया था, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसे ही हुआ था. मेरा भी बॉडी पेन बहुत होता था, मगर धीरे धीरे वो मसाज करके, किसी दिन मैंने नहीं दौड़ा, वॉक किया, उसके बाद फिर से गया, धीरे धीरे अपना माइलेज बढ़ाया, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इस हिसाब से रनिंग किया. क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा. आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी फॉलो करना है. क्योंकि क्या होता है, न्यूट्रिशन ऐसा चीज़ है कि आप अगर जितना, इट्स अ सिंपल मैथ, आपका इंटेक से ज़्यादा आपका आउटपुट होना चाहिए. अगर आपका वेट लॉस आपका ये है, गोल है, अगर आपका गोल है कि मुझे और ज़्यादा अच्छे से क्या है, और थोड़ा एंड्योरेंस बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों के फॉलो करना है. जैसे न्यूट्रिशन को आपको, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है. सो कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, राइट? सो ये मेथड हमें फॉलो करना है. एग्जैक्टली. तो अगर कोई बंदा जैसे 2000 कैलोरीज खाता है, सो
वो 2000 कैलोरी उसको बर्न आउट भी करनी पड़ेगी? नॉट नेसेसरी कि उसी दिन में उसको करना है कि नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस दिन कर सकते हो तो यू कैन टेक दिस 2000 कैलोरी ऑन दैट डे। अगर नहीं कर सकते हो तो वो 2000 कैलोरी आप इनटेक ही मत करो उस दिन। तो हो गया ना आपका सिंपल मैथ। तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है बॉडी को। बट मैंने सुना है कि भी अगर आप कैलोरी वर्सेस इन आउट करते हो तो अगर आप 2000 खाते हो पहले और अभी आपने 1500 कर दिया तो आपकी बॉडी जो है वो 1500 तो चाहेगी, बट टेक्निकली आप कम खा रहे हो बट आपको एनर्जी भी कम मिलेगी। इज इट लाइक दिस? नहीं, वो डिपेंड करता है। क्या होता है कि ये एक मिथ है। मिथ कैसा है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जितना खाएंगे वो आप लोग बर्न कर देंगे तो हम लोगों का पूरा एनर्जी खत्म हो गया तो चलो मैं फिट हूँ। मगर हम लोग ये सोचते नहीं है कि ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, जो डिपॉजिट है सब है हमारे हर बॉडी में ऊपर से नीचे तक वहाँ पे है। तो उसको यूटिलाइज करना है, तभी जाके आपका क्या होता है। क्या ये जो इन्होंने बताया वो सही है कि जब आप रनिंग करते हो इम्पैक्ट आपका घुटनों में होता है, आपका फिट में होता है। तो आपका ऊपर का बॉडी का वेट अगर ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट आपका नीक पे पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऊपर का वेट का थोड़ा लूज करना है, तो आपको ये पैर में इम्पैक्ट कम होता है। तो उसके ऊपर उस हिसाब से रनिंग करने से वेट लाइक हम लोग ये मोटो ना बना के चलें कि अगर हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो वेट लॉस करने के लिए कर रहे हैं। सो ये चीज नहीं है, आपको पहले अपना वेट लॉस करना है उसके बाद आप रनिंग कर सकते नहीं, हो। आप ऐसे भी आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पहले वेट लॉस करना है फिर रनिंग करना है, क्योंकि ये नहीं होता है। क्योंकि तो आप क्या होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि फूड क्रेविंग। आप दो दिन खाना ना खा के आपको सह सकते हो, ठीक है। तीसरा दिन ऐसा भूख लगेगा वो 2 दिन का भी मेकअप कर दोगे। करेक्ट, ये होता है ह्यूमन बॉडी का, ये नेचर है। करेक्ट 1500 पे आ गए बट नेक्स्ट टाइम आप 2500 खाना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये होना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप खाओ और आप वॉकिंग भी जाओ, रनिंग में भी जाओ, आपके बॉडी के हिसाब से आप करते रहो और देखो कि तुम्हारा बॉडी में कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं। अगर 100 ग्राम में भी फर्क आ रहा है तो देन यू आर इनटू द राइट ट्रैक। दैट इज हाउ द बॉडी the running start, because running and weight both are actually equivalent important, because अगर आपको फास्ट रनिंग करना है तो डेफिनेटली आपको वेट कम करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बस रनिंग एंजॉयमेंट के लिए करना है, वो भी कर सकते हो। वो क्या करेगा आपको एज ए बेनिफिट, आपको वेट ऑटोमेटिकली कम करके देगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं करने देगा। मगर हाँ, अगर आप प्रोफेशनल रनिंग कर रहे हो कि सोच रहे हो मुझे 42 दौड़ना है, मुझे 21 दौड़ना है, मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर भी दौड़ना है, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर कोई मोटे वाली बंदी और नहीं कर सकते, सब लोग करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नहीं करते, वो लोग एंजॉय भी करते हैं लाइफ को। तो आपको ये डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। अगर चाहते हो कि नहीं मैं रनिंग को ऐसे प्रोफेशनल और रनिंग को मैं पैशन फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगता है कि रनिंग प्लस ये फूड का दोनों का बहुत ताल्लुक है, तो इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। यस। सो कुणाल, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? मैंने इस साल UTMB के लिए क्वालिफाई किया है, जिसके लॉटरी रिजल्ट नेक्स्ट ईयर आएंगे। सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गेट इन बिकॉज़ इट इज लॉटरी। And maybe you will get. Yeah, you are lucky one. Yeah, if I am lucky one, then I'll attempt that event. If not, then I'm planning for 100 kilometer race in Dolomite. So that is planned for next June. Next June. Okay. आपका सुमन? So मेरा plan है to attend the Ironman. So that is my plan. So Ironman क्या है? So Ironman is like a triathlon. So it combination of swimming, cycling and running. So Ironman has two major category. One is the full Ironman, which includes 3.8 kilometer of swimming, 180 kilometers cycling, and 42 kilometer is running. And there is a half Ironman, 70.0 they said. So it's all are halves, like 1.9 kilometer of swimming, then 21 kilometers running, and 90 kilometers cycling. So this is the Ironman. You have to complete back to back. So yeah. So you have to complete in like continuously. One shot, yes. Oh my God. Yeah. So you already trained for that? I'm training because I'm not good in swimming. So I'm preparing it. So let's see how it goes. So that's my plan. And so I'll do a quarter Ironman first, because I don't want it to jump to the top
from the top so that it will hurt more. So Yes. I start from the 72 hours for sure. You So- need little sleep. yeah. So there are some a It few. will be also half Ironman. It will be also 72 hours, or it will be less than. It will be less. It will be less. Okay. Yes. So they have a cut-off time. So it depends on different organization how they make it up. Mhm. But it was almost half. If it's 70 is the full, then half you can understand 35, 40 around to be the In which cut-off time. country this is happening? Almost all 17, right? 70.3. It says the half Okay, yeah. half Ironman. In which country it will be held? There are quite a few countries they do. Even I think in Denmark also they have, Germany also they have. So even India also they have participate. So there are so many areas you can participate. You can continue with that. Mhm. But that is a bigger goals. But in short terms, I'll participate called quarter Ironman. Quarter Ironman is like a 1 kilometer of swimming. 10 kilometer of running, because the problem is not about the swimming. Problem is like with the wet clothes, you have to change it, you have to go for cycling, then you have to go for running. And this will be So- maybe in summer में ही करेंगे Yeah. mostly. Mostly they will do this summer. It depends on, because इन लोगों का summer तो ये तो सर्दी में भी पानी में जा पानी में जा सकते सकते हैं. So yeah, so that's the Okay. plan. सो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे कुणाल, अगर बिकॉज आप क्रैको में रहते हो, अगर क्रैको के दूसरे जो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना है मैराथन के लिए, तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि जहाँ आप कैसे वो आपसे रीच आउट कर सकते हैं, और आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए? मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि ये लॉन्ग टर्म गोल है. डोंट लुक फॉर ओवरनाइट फिनिशेस. दिस थिंग्स टेक टाइम, और जितना आप लंबे टाइम के लिए करोगे आप उतना ही एंजॉय करोगे. एंड ऑल्सो चेक व्हाट काइंड ऑफ time or commitment you can provide to your passion or running or these kind of sports. And I would say don't take only running as an event. Like also there is cycling, there is swimming, there are many different kind of options. Choose your right passion and do it consistently and with discipline. बट यहाँ पे वेदर का भी इशू है, सो आप कहाँ पे एडवाइस कर सकते हो अगर किसी ने रन करना है तो वो कौन सी लोकेशन पे जाए इन क्रैको में रनिंग इनसाइड करने के लिए, सो उनको ये एक्सक्यूज ना हो, लाइक वो एक्सक्यूज ना बना पाए कि भाई अभी सर्दी है मैं बाहर नहीं दौड़ने जाऊंगा जो जाऊंगी. देखो ये रनिंग है ना, मतलब रनिंग इज नॉट ओनली अबाउट रनिंग. इवन व्हेन यू ट्रेन फॉर रनिंग देयर आर अदर थिंग्स यू हैव टू सप्लीमेंट और क्रॉस ट्रेन फॉर रनिंग. तो जैसे मैं करता हूँ, मैं विंटर में यूजुअली इंडोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ. जो अपने मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि बाहर स्नो रहता है तो वो बाहर भाग नहीं सकते हम. तो वो टाइम हम इस चीज़ों के लिए यूटिलाइज करते हैं कि अपना बेस फाउंडेशन अच्छा बने. जब समर आएगा तो हम अपनी ट्रेनिंग को और पुश कर पाएंगे. तो ऐसे टाइम पे आप इंडोर ट्रेडमिल का रनिंग भी कर सकते हो. जैसे विंटर में जब बाहर नहीं जा सकते, इंडोर साइकिलिंग कर सकते हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करते हो. जब वेदर फेवरेबल होगा तब आप बोनिया है, बहुत सारी क्रैको में पार्क है, वहाँ पे आपको रनिंग के लिए बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है. आप मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप क्रैको जैसे सिटी में हो तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और वो इजीली एक्सेसिबल भी है. मतलब यहाँ पे जो रनिंग ट्रैक है वहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान जाके भी वीकेंड पे भाग सकता है. दैट इज बट मल्टी स्पोर्ट कार्ड के थ्रू आपको एंट्री लेनी पड़ेगी जहाँ नहीं, इट इज इजीली अवेलेबल. पार्क में आप कोई भी जाओ, आप कर सकते हो. हाँ, तो सो कहीं इंडोर भी ये एरिया है? हाँ, इंडोर एरिया वही इंडोर एरिया के लिए मल्टी स्पोर्ट आपको यूज़ करना होगा. बट वही इंडोर में बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास. आप डिफरेंट तरीके के वेट एक्सरसाइज कर सकते हो और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी वाले वगैरह एक्सरसाइज भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स कि आप अगर ओवरवेट हो, आपकी एज क्या है, तो आपको पहले मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब एरिया में पहले काम करना पड़ेगा. और मैं तो कहूँगा कि विंटर इज़ गुड टाइम. जब आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पे बैठे इस तरह के वर्कआउट कीजिए. तो जब समर आएगा यू विल बी रेडी टू ट्रेन आउटसाइड. ओके, सुमन आपसे भी सेम क्वेश्चन. हाँ, सो मैं बोलता हूँ कि रनिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी.
क्योंकि हम तो 60 तो कर देते हैं, एक हफ्ता कर भी लेंगे, अगर वो फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो एंड मोस्टली लोग आई थिंक वहाँ पे फेल हो जाते फेल हैं, हो जाते हैं, यस, स्टार्ट तो करते हैं बट वो करेक्ट करेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता है, नहीं क्योंकि वो करते पुश नहीं मिलता है उनको। हाँ। और कभी कभार किसी का यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत अंदर में पैशन आ जाता है, बट आफ्टर 2 months और गॉन, राइट, Yeah, सो दैट शुड नॉट motivation. हैपन। तो ट्रेनिंग प्लान 2 होना चाहिए समर में, जैसे ये बोला, डेफिनेटली समर तो पूरा खुला है, कभी भी दौड़ो, कहीं से भी। रात के 9 बजे तक 10 बजे तक सन रहता है, तो यू कैन गो एनी टाइम, आराम से आपका ऑफिस का काम करने के बाद यू कैन गो एंड रन। विंटर के लिए जो मेरा प्लान है, मैं जिम जाता हूँ, ऐसे एज आई टोल्ड, ट्रेडमिल में मैं 10, 15, 20 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ विथ फुल स्पीड, लाइक जो मेरा होता है मैं दौड़ लेता हूँ, थोड़ा साइकिलिंग कर लेता हूँ वहाँ पे। और कभी कभार मैं क्या करता हूँ, बाहर में भी दौड़ लेता हूँ, क्योंकि पूरा टाइम अंदर में ट्रेनिंग करना भी सही बात नहीं है। आपका बॉडी को बाहर के ठंड का भी थोड़ा ये होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो जब स्नो नहीं गिरता है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में, तो मैं बॉनी आ जाता हूँ, यहाँ पे दौड़ लेता हूँ। तो रनिंग स्नो में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि स्लिपरी होता है। तो मैंने डेकाथलॉन से एक चेन लेके आया हूँ, जो चेन एक्चुअली आप शूज में पहन सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, ग्रिप रहता है आपका इसमें के ऊपर, तो वो आपको हेल्प करता है कि आप स्लिप ना कर जाओ। तो वो थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, अराउंड 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बाद स्वेटिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ा बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इमीडिएटली घर चला जाता हूँ। तो आप रेस्ट भी करते होगे डेफिनेटली बीच में? हाँ, 10 किलोमीटर्स में तो कर लेता हूँ। तो क्या होता है, इसमें आपका बॉडी का थोड़ा पता चल जाता है कि चलो थोड़ा बहुत इसको आदत भी पड़ गया थोड़ा ठंड में। जैसे तुम बाहर जा रहे हो तो पूरा के पूरा टाइम तुम समर में दौड़ोगे और विंटर में नहीं करोगे, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं सही है। मगर यस, 70% फोकस ऑलवेज बी इज योर इंडोर टाइम and 30% टाइम यू शुड गिव टाइम टू योर आउटडोर एक्टिविटी। एंड खाने में फोकस देना चाहिए, क्योंकि विंटर में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। प्रॉब्लम है कि हम लोग घर में रहते हैं, यही वो बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो उसमें भी थोड़ा फोकस होना चाहिए कि हम लोग कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, कितना हम लोग उसको बर्न आउट कर रहे हैं। वो भी थोड़ा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि फिट रहने के लिए। और बाकी तो कुछ नहीं, अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप के साथ दौड़ो। और सबसे बड़ी बात है, ट्रैकिंग में जाओ। इस टाइम में ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि विंटर में तुम ट्रैकिंग में जितना जाओगे तो आपका बॉडी वो 6-7 घंटा जब आपको शरीर को झेल लेगा ना, वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि आप बॉडी हर टाइप ऑफ सीजन में आपको उसको ट्रेन कर रहे हो। तो ये अच्छा चीज़ है, तो ये भी करो। तो ऐसे जो राइटली ही सेड कि रनिंग ये सब कुछ नहीं है। अगर आपको पैशन है बैडमिंटन खेलना, बैडमिंटन भी खेल सकते हो, क्योंकि कुछ भी स्पोर्ट्स आप ले लो, बी एक्टिव। क्योंकि जब तुम एक्टिव रहोगे तभी जाके तुमको लगेगा कि मैं रन कर सकता हूँ। क्योंकि रनिंग है क्या है कि आपको मोटिवेट करते हैं, चलो थोड़ा दौड़ते हैं। तो मतलब क्या है कि आप पुश करते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो यही होता है कि रनिंग और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स आप ले लो सेम ही है। तो आपको नेसेसरी नहीं कि आप रनिंग ही करो, बट आपका पैशन है कुछ भी तुम फॉलो करो। अगर रनिंग कर सकते हो, अगर कुछ इफ़ यू वांटेड टू रीच आउट, आई हैव माय फेसबुक पेज, आई डोंट हैव इंस्टा, sorry. you should make it one. So I'm available in my WhatsApp number. If anything you need, you can directly contact me, free of cost. There is no charges, don't worry. You can charge. No, because there are some people who help me in my journey. वो भी मतलब ऐसे टाइम में हेल्प किया जो जब मुझे चाहिए होता था, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था लाइफ में। तो so they help me without any kind of extra other intention. So that's why I wanted to give it back to the society. So I don't have any problem. You can reach out to So me. nice of you. Yeah. So yeah. Okay. So thank you, Thanks. Kunal. Thank you, Thank you Priti. so much Sure. for joining us today. Yeah. It was very pleasure to talking with you guys. And मुझे एक्चुअल में मैं मोटिवेट हो गई हूँ। अभी पता नहीं है, शायद मैं नेक्स्ट डे तक चलेगी ये मोटिवेशन नहीं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट. Sure. Not only running, but at least to be active. Active. Yeah. एंड सेम हम लोग अपने व्यूवर से भी कहना चाहते हैं. सो आप अगर दौड़ना चाहते हैं मैराथन में, तो आपको पहले तो एक्टिव रहना सीखना पड़ेगा,
और अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. सो ये हमारे गेस्ट थे. आई होप आपको अच्छा लगेगा सुन के और आपको भी मोटिवेशन मिलेगी जैसे इन्होंने मुझे दी अभी. सो थैंक यू एवरीवन एंड कॉर दिस साइड एंड please subscribe and like our channel and there will be previous or new episode. Please go and check it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you.